Okay, now see what is given in the question. A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each prize. So we have to find the value of each prize because it is a cash prize. Okay, 7 cash prizes given है यहाँ पे, तो हमको उनका वैल्यूएशन निकालना है और सबका सम हमको पता है कितना है, इट इज रुपीज 700. सो व्हाट डज इट इंडिकेट्स? ये किसका वैल्यू है? 700. 700 किसका वैल्यू है? इन टर्म्स ऑफ एपी हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये कौन से नोटेशन से डिनोट करेंगे इसको? इट इज द वैल्यू ऑफ एस एन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एनालाइज द थिंग्स. भी यहाँ पे 7 कैश प्राइजेस बोला है, ये किसका वैल्यू है? 7 cash prizes, what does it denotes in terms of AP or in terms of formula of AP? It is nothing but your N. Okay, it is nothing but your N. Now we don't know, अभी फर्स्ट प्राइज वाले को सबसे ज्यादा अमाउंट मिलेगा. ओके, इट इज कंफर्म द फर्स्ट प्राइज पर्सन विल गेट more amount. Okay, suppose this is the first prize, this is second prize, third prize, fourth prize, fifth, sixth, and seventh. Okay, so we don't know the amount which we are going to give to the first prize winner, so we will take it as x. Okay, तो यहाँ पे क्या बोला है? If each prize is 20 rupees less than the preceding price, तो second price क्या हो जाएगा? x minus 20, क्योंकि 20 रुपीज से कम होगा सेकेंड प्राइस. उसके बाद थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा? x माइनस 20 से भी और 20 कम करना है, तो वो क्या हो जाएगा? x माइनस 40. थर्ड प्राइस हो जाएगा x माइनस 40. सिमिलरली टेल मी व्हाट विल बी द फोर्थ प्राइस देन? व्हाट विल बी द फोर्थ प्राइस? x माइनस 60. फिफ्थ प्राइस क्या हो जाएगा? x माइनस 80. सिक्स्थ प्राइस विल बी व्हाट? x माइनस 100. seventh price will be what? x minus 120. Okay. अभी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. Now we will form the series of these prizes. Okay, we have first prize as x, second prize as x minus 20, third prize as x minus 40, fourth prize as x minus 60. So we will form the series of this, all the prizes. Okay, so first we will write sum of all prizes is equal to Sn, which is equal to 700. उसके बाद number of prizes is equal to n, which is equal to 7. Okay, the series will be, we have formed a series. Now we will write that series. The series will be, okay, so first term of this series, what it is? It is x. Second term of this series is what? X minus 20. Third term of this series is what? X minus 40. And the series is up to last term is what? X minus 120. Okay, so this is our A1 या फिर A. This is our A2, this is our A3, and this is our A7. Okay, because seventh term is the last term, because there are only 7 prizes. Now next what we will have to find? हम लोग हमेशा क्या find करते हैं सीरीज लिखने के बाद? What we require? What we require after writing the series? Common difference D. So we will find the common difference D. Now common difference D is given by, so common difference D is what? A2 minus A1. Okay, तो A2 क्या है हमारा? x माइनस 20. उसमें से x को सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये प्लस x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ माइनस 20. So the common difference is what? It is minus
20. Now what formula we will use? Nth term of the AP use करेंगे या sum of n terms of the AP? कौन सा formula use करेंगे? We are given with Sn. Okay, so now sum of n terms of the AP is given by, so Sn, which is equal to n by 2. Okay, तो अभी यहाँ पे कौन सा यूज करूँ? 2a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी, या फिर a प्लस ए एन वाला यूज करना है? विच आई शुड यूज हियर? दो फॉर्मूला हमारे पास, a प्लस ए एन, करेक्ट। क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों भी है ये सीक्वेंस का, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। एस एन इज इक्वल टू 700। एन कितना है आपका? 7/2। ए क्या है आपका? एक्स। और ए एन क्या है आपका? एक्स माइनस 120। solve this solve this, tell me the value of x. Only one unknown is there and one equation is there, so you will get the value of that unknown x. ये 2 को उधर शिफ्ट करने के बाद ये हो जाएगा 1400, ये 7 नीचे आ जाएगा, विच इज इक्वल टू x प्लस एक्स, इट विल बिकम 2x माइनस 120। तो 200 विच इज इक्वल टू 2x माइनस 120, ये 120 उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, सो व्हाट इट विल बिकम 320 विच इज इक्वल टू 2x, यानी x का वैल्यू आ जाएगा फिर 160। तो फर्स्ट प्राइस का वैल्यू हमारा कितना आ गया है? ₹160। टेल मी द वैल्यू ऑफ सेकेंड प्राइस देन, व्हाट इट विल कम? ₹140, 20 लेस देन द फर्स्ट प्राइस। थर्ड प्राइस क्या आ जाएगा? ₹120। फोर्थ प्राइस क्या आ जाएगा? ₹100। फिफ्थ प्राइस विल कम ₹80। sixth price will come ₹60, and last price, that is seventh price, will come ₹40। आप इनका सम करके देखोगे तो it will come 700 only। Is it clear to you? Any doubt to anyone? Is it clear to you? Okay, see, always whenever you see the worded problems of arithmetic progression, पहला काम आपको यही करना है कि you should form the sequence। अगर आप सीक्वेंस बना लेते हो, जो कुछ भी आपको वर्डेड प्रॉब्लम में गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप सीक्वेंस बना लेते हो, देन रेस्ट ऑल थिंग्स आर क्वाइट इजी। Okay, next one. Now, next question is what? In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce the air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. For example, क्लास 1 में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो कितने ट्रीज प्लांट करेंगे? एक ट्री प्लांट करेंगे। क्लास 2 में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो कितने ट्री प्लांट करेंगे? वो 2 ट्रीज प्लांट करेंगे। ओके, सिमिलरली क्लास 3 में पढ़ रहे हैं तो वो 3 ट्री प्लांट करेंगे। क्लास 12 में अगर पढ़ रहे हैं बच्चे तो वो कितने ट्री प्लांट करेंगे? 12 ट्रीज प्लांट करेंगे। ओके, there are 3 sections of each class. This condition is also very important. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? So we have to find what we have to find after reading the question. What you understand, what we have to find? Number of trees, यानी वो किससे डिनोट करेंगे हम लोग एपी के टर्म्स में? which will be the notation given to how many trees will be planted? Janvi Kharat is saying N. Om Mandlik is saying SN. It will be SN. Sum of all the trees it will be. Okay. Sum of all the trees, that is SN हमको find करना है. N नहीं find करना है हमको. N already है हमारे पास classes कितने? 12 classes. तो N already है हमारे पास. Okay. Now see,
पहले सीक्वेंस फॉर्म कर दें। तो अभी क्लास वन से शुरुआत करते हैं। तो क्लास वन के तीन डिवीजन है, ए बी और सी। ओके, ए बी और सी। तो एक ट्री ये प्लांट करेंगे, एक ट्री ये प्लांट करेंगे, और एक ट्री ये प्लांट करेंगे। ओके, सिमिलरली क्लास टू क्या करेगा? क्लास वन, दिस इज क्लास टू। क्लास टू को कंडीशन क्या है? क्लास टू वाले बच्चे दो दो ट्रीज प्लांट करेंगे क्योंकि वो क्लास टू में पढ़ रहे हैं। तो तीनों डिवीजन के टू टू टू। ओके, सिमिलरली क्लास थ्री के बच्चे तीन तीन ट्रीज प्लांट करेंगे। ओके, और तीनों डिवीजन के थ्री 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 हो जाएंगे। ओके, सिमिलरली क्लास फोर, ओके, दे विल प्लांट फोर 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 ट्रीज। ओके, ऐसे करते करते इन दिस वे वी विल रीच अप टू क्लास 12। ओके, सो क्लास 12 के बच्चे कितने कितने ट्रीज प्लांट करेंगे? यस, हाउ मेनी ट्रीज? 12 12 ट्रीज। 12 12 12। अभी इनका एडिशन कर लो, कितना आ रहा है बोलो मुझे। 1 + 1 + 1 इट विल कम 3। यहाँ पे 2 + 2 + 2 इट विल कम 6। यहाँ पे 3 + 3 + 3 इट विल कम 9। 4 + 4 + 4 it will come 12. Okay, like this. At the last here, 12 + 12 + 12 it will come 36. Okay, now we can form the sequence from this values 3 6 9 12 dash 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 36. So the series will be okay. So first term of the series is what? It is 3. Second term is what? It is 6. Third term is what? It is 9, and the sequence goes up to 36. Okay, so this is my A1 या फिर A, this is my A2, this is my A3, and at the last this is my 12 classes है ना, तो ये A12 होगा. Okay. Now next what we will require, what we have to find? We have to find Sn. Okay, we are having two formulas of Sn, so what we will require next? Can we use the second formula of Sn? यानी वो छोटा वाला फॉर्मूला, Sn is equal to n/2 which is equal to a plus an. यहाँ पे d निकालने की भी जरूरत नहीं है हमको if we use this formula. So we will use this sum of n terms of the AP is given by. Okay, so Sn से डिनोट करते हैं which is equal to n/2 a plus an. Okay, so n is what? N is equal to 12 divided by 2. First term is 3. Last term is 36. Calculate this, how much it comes. 6 into 39. 234. 224 or 234? Someone is saying 224. Okay. 234 is the answer. So total number of trees the students have planted is what? 234. Write down the final statement also because these are worded problems. Is it clear to you? Any doubt to anyone? Okay, next one. A spiral is made up of a successive semicircle with centers alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 centimeter
उसके बाद 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, एंड सो ऑन, as shown in the figure 5.4. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? So what does this indicate? 13 consecutive semicircles. What will this indicate in terms of AP? हमारा formula जो AP का, it will nothing but it will be n. ये n given है हमको 13. Okay, n is equal to 13. Now radius is given. First of all, we will see the figure, then it will be more clear. Okay, now see, ऊपर वाले जितने भी सर्कल्स हैं उसके लिए सेंटर ए है. ओके, ऊपर वाले जितने भी, सॉरी, सेमी सर्कल्स जितने भी है ऊपर वाले, उसके लिए सेंटर क्या है? ए. और नीचे वाले जितने भी सेमी सर्कल्स है उसके लिए सेंटर क्या है? बी. तो अब ये सबसे पहला वाला सर्कल ये येलो वाला है, तो इसकी रेडियस कितनी है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस फर्स्ट सेमी सर्कल, दिस येलो पार्ट? व्हाट इट इज गिवन? इट इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 0.5 सेंटीमीटर. 0.5 सेंटीमीटर. ओके, उसके बाद सेकंड वाला सर्कल ये है, देखो ये ब्लू वाला. ओके, इसकी रेडियस कितनी है? टेल मी द रेडियस ऑफ दिस. व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस blue circle? It is given in the question as 1 centimeter. Okay, so r is equal to 1 centimeter. थर्ड वाला सर्कल ये ग्रीन वाला है, देखो ग्रीन वाला, उसकी रेडियस कितनी है सेमी सर्कल की? इट इज 1.5 सेंटीमीटर. सिमिलरली फोर्थ वाला सेमी सर्कल ये ब्राउन वाला है, उसकी रेडियस कितनी है? 2 सेंटीमीटर. ओके, नाउ वी हैव रिटन ऑल द रेडियस ऑफ ऑल द सेमी सर्कल्स. और ऐसे 13 कॉन्जिगेटिव सेमी सर्कल्स है, ये कंटिन्यूड है. देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये कंटिन्यूड है. ओके, so now we have to find the length. Okay, we have to find the length of such a spiral made. Okay, तो ये जो लेंथ है हमको निकालना है. तो अभी लेंथ देखो, मुझे बोलो, फिगर देख के आपको समझ में आएगा. सपोज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. ओके, ये इतना पोर्शन आपका L1 है. ओके, उसके बाद यहां से लेके यहां तक का पोर्शन L2 है. उसके बाद यहां से लेके यहां तक का पोर्शन L3 है. उसके बाद यहां से लेके यहां तक का पोर्शन L4 है. दैट मीन्स ये स्पाइरल का अगर मुझे लेंथ निकालना है तो आई विल हैव टू ऐड L1, L2, L3, L4 अप टू L13 टू गेट द लेंथ ऑफ द स्पाइरल of 13 consecutive semicircles. Okay, so up to L13 I will have to add. Now tell me, what is the formula for semicircle? Area of semicircle, sorry, circumference of semicircle, not area. We are not interested in area here. Okay, circumference of semicircle, it is equal to, सर्कल का, पूरे सर्कल का होता है 2 पाई आर, उसको अगर 2 से या फिर हाफ कर देंगे तो वो हमको सेमी सर्कल का मिल जाएगा, वो होता है πr. ओके, नाउ वी विल फॉर्म द सीक्वेंस. हाँ, अभी लेंथ वन क्या है? इट इज नथिंग बट पाई इंटू r1. सो नाउ टेल मी, पाई वी विल कीप इट एज इट इज. r1 कितना है मेरा? 0.5 है. ओके, r1 कितना है मेरा? 0.5. लेंथ 2, व्हाट इज लेंथ 2? पाई इंटू r2. सो पाई विल बी एज इट इज. r कितना है यहाँ पे? 1 है. ओके, नेक्स्ट लेंथ 3, पाई इंटू r3. पाई विल बी एज इट इज. लेंथ यहाँ पे रेडियस कितना है? r3, इट इज 1.5. सिमिलरली L4, पाई multiplied by r4, so pi multiplied by 2. Okay, and like this the sequence goes on. Okay, so now we will form the sequence from here. So what will be the sequence now? The series will be, the series will be. Okay, तो पहला टर्म क्या आएगा सीरीज का? pi multiplied by 0.5. What will be the second term of this series? Pi multiplied by 1. What will be the third term of this series? Pi multiplied by
1.5 एंड सो ऑन। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग लास्ट लेंथ भी निकाल सकते हैं, L13। टेल मी नाउ सी, लेंथ वन क्या हो गया है, पाई मल्टीप्लाइड बाय हाफ। लेंथ टू क्या हो गया है, पाई मल्टीप्लाइड बाय वन। यानी फर्स्ट लेंथ यहाँ पे वन है तो उसका हाफ हो गया है, यहाँ पे टू है तो उसका हाफ हो गया है, यहाँ पे थ्री है तो उसका हाफ हो गया है 1.5, यहाँ पे फोर है तो यहाँ पे उसका हाफ हो गया। वैसे ही लेंथ 13 क्या आएगा, pi multiplied by r13 and it will be equal to pi multiplied by 6.5। 13 का हाफ होता है 6.5। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लास्ट टर्म भी लिख देंगे सीक्वेंस का। सो व्हाट इट विल बी, पाई मल्टीप्लाइड बाय 6.5। नाउ दिस इज माय a1 या फिर a, दिस इज माय a2, दिस इज माय a3 and this is my a13। okay, a13 is the last term। now tell me what will be required and which formula we should use here। we have formed the sequence now। नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा बोलो अभी, एस एन। डी निकालने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे, नहीं है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म का वैल्यू है तो हम लोग डायरेक्टली वो जो सेकंड वाला फॉर्मूला एस एन का वो यूज करेंगे। नाउ sum of n terms of the AP is given by, so Sn, it is equal to n by 2 in bracket a plus an। ओके, तो n क्या है हमारा 13 है अपॉन 2, a क्या है हमारा पाई मल्टीप्लाइड बाय 0.5 प्लस an क्या है हमारा पाई मल्टीप्लाइड बाय 6.5। सॉल्व दिस, टेल मी द आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 पाई डिवाइडेड बाय 2, पाई इफ यू टेक कॉमन, सो 0.5 प्लस 6.5, here it will come 7। okay, so 13, what is the value of pi, what is the value of pi, 22/7 is the value of pi multiplied by ये 7, तो ये 7 7 कट गया, ये 2 1 जा, ये 2 11 जा, सो 11 मल्टीप्लाइड बाय 13। इतना ही करना है आपको, 3.14 मत लीजिए आप, 22/7 ले लीजिए। ओके, इफ यू टेक 3.14 ना, व्हाट विल हैपन, यू विल गेट द आंसर इन डेसिमल। ओके, सो 13 मल्टीप्लाइड बाय 11, it will come 143 centimeter। write down the final statement also। is it clear to you? सबसे जरूरी है यहाँ पे आपको बस पहले सीरीज फॉर्म करना है, सीक्वेंस फॉर्म करना है, उसके बाद रेस्ट ऑल थिंग्स आर क्वाइट इजी। So always keep in mind whenever you're solving the worded problems of AP, first form the sequence। Okay, next one। Okay, I will just give a hint, then someone from you tell me what we will do, हाँ। Okay, यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला है, 200 logs are stacked in the following manner। ये फिगर आपको गिवन है, 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row and so on। okay, in how many rows are 200 blocks placed। सबसे पहली बात तो ये फाइंड करना है, in how many rows 200 blocks are placed and how many logs are in the top row, ये भी हमको फाइंड करना है। तो दो चीजें हमको यहाँ पे फाइंड करना है कि 200 ब्लॉक्स ऐसे अगर हम लोग ये फॉर्मेट में अगर उसको प्लेस करते जाएंगे तो कितने ऐसे ये बनेंगे, उसको क्या बोलते हैं, लेयर्स बनेंगे। ओके, फर्स्ट वी विल हैव टू फाइंड दैट। सो ये नीचे वाला जो है इसमें कितने लॉग्स हैं, इसमें 20 लॉग्स है, उसके ऊपर वाले में कितने हैं, 19 है, उसके ऊपर वाले में 18, ऐसे एक 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 कम होते जा रहे हैं। ओके, सो व्हाट वी विल डू हियर नाउ, यस, हु विल टेल मी
व्हाट वी विल डू हियर, क्या फाइंड करना है हमको? यहाँ पे हमको n फाइंड करना है। सबसे पहली बात तो हमको n फाइंड करना है। वी डोंट नो n, वी हैव टू फाइंड n। यस करेक्ट। हम्म। हमको ये 200 लॉग्स का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 200 लॉग्स? इट इज Sn। ओके, इट इज Sn। ओके, सो सीरीज कैसे बनेगी? व्हाट विल बी द सीरीज? हु विल टेल मी व्हाट विल बी द सीरीज हियर? व्हाट विल बी द सीरीज? 20, 19, 18, 17. Correct. Yes, Shravani, it is correct. So here the sequence will be, अब सबसे पहले हम लोग ये 200 लॉग इसके लिए लिख लेंगे। सम ऑफ लॉग्स stacked is equal to Sn, which is equal to 200. Okay, now we will form the series. The series या फिर sequence will be, okay, so first term of the sequence will be what? 20. Okay, नीचे से start कीजिए आप, ऊपर जाना है हमको। Next it will be 19, next it will be 18, next it will be 17, and we don't know till where the series is। यहाँ पे हम लोग लास्ट टर्म जो है ये सीक्वेंस का फाइंड नहीं कर सकते हैं, अभी फिलहाल तो भी नहीं कर सकते हैं। ओके, सो A1 या फिर A2, A3, this is our A4, and the sequence goes up to AN. Okay, suppose this is the nth term, we don't know the value of it, we don't know n also. Okay, so now which formula we will use? हमको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस लगेगा क्योंकि हमको लास्ट टर्म पता नहीं है भला क्या यहाँ पे, वी डोंट नो द लास्ट टर्म, सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। नाउ द कॉमन डिफरेंस d is given by, common difference d is given by, so d it is equal to a2 minus a1। so a2 है हमारा 19, उसमें से 20 जाने के बाद कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -1। ओके, कॉमन डिफरेंस विल कम -1। नाउ विच फॉर्मूला आई शुड यूज? sum of n terms of the AP, sum of n terms of the AP. Okay, so Sn is given by, okay, Sn which is equal to n/2। कौन सा फॉर्मूला यूज करूं अभी यहाँ पे? बड़ा वाला या छोटा वाला? Sn का बड़ा वाला फॉर्मूला या छोटा वाला? विच फॉर्मूला? विच फॉर्मूला? 2a plus n-1 multiplied by d I will have to use here। ओके, Sn का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 200। ओके, n we don't know। ओके, सो n will be as it is। a क्या है हमारा? 2 multiplied by 20 है, प्लस n-1 multiplied by d क्या है मेरा? इट इज -1। कम ऑन नाउ सॉल्व दिस। सो ये 2 को इधर शिफ्ट करने के बाद ये हो जाएगा 400, n as it is 2 into 20 it will become 40, और ये -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -n, और ये हो जाएगा +1। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप व्हाट इट विल बिकम? 400 which is equal to n in bracket 41 minus n। नेक्स्ट स्टेप व्हाट इट विल बिकम? 400 which is equal to n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 41n, और ये है -n²। ना अरेंज इट, इट इज फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो n² को इधर लेके आएंगे, -41n हो जाएगा
400 हो जाएगा which is equal to 0. Now tell me the factors of this quadratic equation. We have to solve this quadratic equation to get the value of n. -25 एंड -16. ओके, तो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लीकेशन में क्या चाहिए? आई वॉन्ट 400 एंड इन एडिशन व्हाट आई वांट -41. तो 25 16 इज 400. हाँ, और इससे 41 भी बनता है. अगर हम लोग -25 और -16 कर दे तो वी कैन मेक 41. सो n स्क्वायर -25n -16n plus 400 which is equal to 0. Now what is common here? N is common, so n minus 25 in the bracket, minus 16 is common here, so again n minus 25 in the bracket which is equal to 0. So n minus 25 in one bracket and n minus 16 in other bracket which is equal to 0. So n is equal to 25 and n is equal to 16. अभी दो दो वैल्यू कैसे आ सकते हैं n के? इट इज नॉट पॉसिबल ना. ओके, तो अभी हम लोग चेक करेंगे. नाउ व्हाट वी विल डू नेक्स्ट? यस, हु विल टेल मी? वी आर गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ n. अब क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट? What we will do next? By putting n in an. Why we will put in an only? Who will give me the reason? I want the reason. I don't want the answers. I want the reasons. Why we will put it in an only? Reason. Yes, anyone? Okay, correct. Harsh, we will get the number of blocks in the top. Okay, at the top layer कितने number of blocks है वो हमको मिलेंगे जो कि हमको चाहिए. ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? दो कंडीशन है अभी हमारे पास. सी, फर्स्ट कंडीशन ए, व्हेन n is equal to 25. ओके, व्हेन n is equal to 25, तो an क्या होगा? an will be a plus n minus 1 मल्टीप्लाइड बाय d. ये हमारा फॉर्मूला है. तो a25 क्या हो जाएगा? a क्या है हमारा? 20. यहाँ पे ये 24 मल्टीप्लाइड बाई डी है -1, तो 20 माइनस 24. यहाँ पे -4 आ रहा है. ओके, यानी टॉप वाले लेयर में -4 ब्लॉक्स होंगे ऐसा हमको मिल रहा है. इफ वी टेक n इज इक्वल टू 25, इज इट पॉसिबल? Number of blocks in the top layer are -4. It is not possible. So this value of n is equal to 25. It is impossible. So second value we will take when n is equal to 16. n is equal to 16 आप लो, और an का वैल्यू क्या आता है बोलो मुझे? an will be what? a16 will be what? a plus 15d. so a क्या है हमारा? 20 plus 15 into -1. so it will come 5. हाँ, now this is possible. सबसे ऊपर वाले लेयर में 5 ब्लॉक हो सकते हैं. this is possible now. Okay, so this is the answer. So how many logs are there in the top row? There are 5 logs. And how many number of rows are there? Yes, how many number of rows are there? 16. Okay, so we got the answer of both. I think so. Last 2 minutes are remaining. I will explain the last question. You will do it by yourself. हाँ? सबसे पहली बात आपको sequence form करना है. Now, how to form the sequence? First, we will see that in a potato race, a bucket is placed at the starting, which is 5 meter from the first potato. ये देखो, ये bucket और first potato के बीच में distance कितना है? 5 meter. And other potatoes are 3 meter apart in a straight line. बाकी potatoes के बीच में 3 meters का distance है. Okay. और there are 10 potatoes. ये 10 potatoes क्या indicate करता है? It is nothing but your n. Okay. Now a competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket. यानी वो यहाँ से start कर रहा है. He's starting from this point. वो पहला पोटैटो उठाता है और यहाँ से वो रिटर्न जाता है ये बकेट में डालने के लिए. ओके, सो ये
पहला पोटैटो के लिए वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 5 मीटर जाने के लिए, 5 मीटर आने के लिए। ओके, यानी 10 मीटर ट्रैवल कर रहा है फॉर द फर्स्ट पोटैटो। अभी मुझे सेकंड पोटैटो के लिए बोलिए, यहाँ से स्टार्ट करेगा यहाँ तक जाएगा। ओके, कितना डिस्टेंस हुआ ये, 5 + 3 8। ओके, और फिर यहाँ से वापस जाएगा, 8 + 8 ये हो जाएगा 16। ओके, अभी नेक्स्ट क्या आएगा फिर, 6 से बढ़ने के बाद इट विल कम 22, नेक्स्ट क्या आएगा 28। लाइक दिस द सीक्वेंस विल गो ऑन। बस ये सीक्वेंस फॉर्म हो गई आपकी। बाकी आप फिर सब निकाल सकते हो कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज नथिंग बट SN। ओके, so I have given you the hint, you will solve it, it's homework. Tomorrow we will start the new topic, that is triangles.